Hello friends, hope you are doing well. So this is our monthly feature of top 5 cars in respective segments. So this is for the month of July 2025. Hope you all are well and आप सब अच्छा कर रहे होगे. आजकल काफ़ी ज़्यादा बस चल रहा है E10 E20 गैसोलीन को लेके एंड तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कुछ चर्चाएं चल रही हैं. तो इट्स सो अब उसको भी हम थोड़ा सा लेंगे बट ज़्यादातर हमारा फोकस वही रहेगा टॉप 5 कार्स in respective segments for the month of July 2025. As usual, these are dispatch numbers. These are not registered registration numbers. So let's start. We always start with the compact SUV segment because सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इसी segment में available हैं across all the brands, जिनकी सेल इतनी नहीं भी हो रही उनका भी और वैसे भी. So on number one we have Brezza with 14,000 units. Then comes at number 2 Nexon 12,825. Then Hyundai Venue 8,054. Then Kia Sonet 7,627. And XUV 3XO 7,238 units. Cadillac is now 3,377. Magnite is 1,420. Then Syros 834. Kiger is 324. So Maruti Suzuki Brezza is number one at the number one spot, followed by Tata Nexon, which is number 2 in this segment. Then is Hyundai Venue, which is at number 3. So Hyundai Venue's next generation is expected by October 2025. I think the new plant from Hyundai, which is I think Talegaon one, would be operational, and Venue would be the first vehicle to be produced there. We can expect that that Venue numbers would go down. Then you have Sonet, Sonet doing well, but the surprise is Syros is again to triple digits. पिछले month भी triple digit में थी. इस month भी I think this product has fizzled out from the market. Indian market is really very cruel. So Syros, I don't think so that कोई पिछले वक्त हमें लगा कि शायद कोई प्रोडक्शन का इशू है, but I don't think so there is a production issue. This is the product is fizzling out. So Kia needs to, I think they need to add I think they need to add the NA version to the profile rather than the turbo one. So because वो pricey भी हो जाता है. So rest Brezza number one वही same चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा change नहीं आया. Then we come to the urban SUV segment. Here number 1 is Creta with 16,898 units. Number 2 is Scorpio NN Classic. तो differentiation नहीं है उसके अंदर, हमारे पास कोई महिंद्रा प्रोवाइड नहीं करता. 13,747 यूनिट करें स्कॉर्पियो ने. देन इज टोयोटा हाई राइडर विच इज़ अगेन एट नंबर 3. पिछले महीने में नंबर 3 पे थी 8,814 यूनिट के साथ. देन ग्रैंड विटारा 6,373 यूनिट्स. नाउ ग्रैंड विटारा के अंदर CNG वाला फिर से स्टार्ट अवेलेबल हो गया. Then comes Seltos with 6,010 units. Then comes Tata Curve with 2,005 units. Elevate with 1,395. Taigun with 1,327. Kushaq again triple digits 901. Aster with 48. So it's kind of a given that it's kind of a given that Kushaq has been cannibalized by Cadillac. So Creta was number 1 dispatched car for the month of July 2025 in terms of SUVs. देन ओवरऑल नंबर 2 पे थी. नंबर 1 पे मारुति डिज़ायर थी पिछले महीने, मतलब जुलाई के महीने में. Hyundai Creta maintains the undisputed champion in the urban SUV. It's undisputed right from the beginning when it started 10 years back. टेम्प्रेरी ब्लेप आया था जिसमें Seltos थोड़ा सा उसको कवर कर गई थी. Scorpion again going great. Toyota High Rider now is maintaining number 3 position. So that is again concerning for Maruti. है तो उनका alter ego Grand Vitara का, but it's doing well. So Grand Vitara में अभी एक Phantom Black Edition launch किया है next from Maruti, which they commemorate as 10 years of Nexa. इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 10 साल ही नेक्सा को हैं, 10 साल ही क्रेटा को हैं. वो एक ही टाइम पे लॉन्च हुए थे, क्योंकि नेक्सा जब लॉन्च हुआ था इट वाज लॉन्च्ड विद द एस क्रॉस मॉडल. या सो किया सेल्टोस स्टेबलाइज है 5 से 6,000 यूनिट सस्टेनिंग नंबर्स. फेस लिफ्ट आना है इसका 2026 में. हाइब्रिड मॉडल एक्सपेक्टेड है.
टाटा कर्व इज़ फेडिंग, सो मच कैंपेन टाटा ने इस पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी किया, बट 2000 यूनिट्स आर नॉट ग्रेट एट ऑल. सो यूरोपियन नंबर्स वही सेम स्टोरी, नॉट इंकरेजिंग. उनका कोई फेस लिफ्ट अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला है, वो नीच ही रहेगा. देन कम्स द माइक्रो एसयूवी सेगमेंट. हियर यू हैव टाटा पंच एट नंबर 1 विद 10,000. Sorry, the number 1 is Suzuki Fronx with 12,872 units. Punch is at number 2 with 10,785 units. Exter is at 5,075. Then Taser is at 1,687. In the premium hatchback segment हमारे पास नंबर 1 पे है बलिनो 12,503 यूनिट, ग्लांजा 5,019. फर्स्ट टाइम ग्लांजा नंबर 2 पे हुई, नहीं तो नंबर 2 पे अल्ट्रॉज होती है ज़्यादातर. अल्ट्रॉज विद 3,905 यूनिट्स, i20 विद 3,396. थोड़ा सा प्रीमियम हैचबैक के में अपटेक हुआ है, मतलब अगर हम लगाएं तो इनमें थोड़ा सा सेल्स बढ़ी हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. So then comes to the budget hatchbacks. Number 1 is WagonR with 14,710 units. Then the Swift 14,190 units. Tiago with 5,575. i10 Grand with 3,560 units. So WagonR is number 1 in this segment. Recently Maruti Suzuki announced 10 million sales of WagonR worldwide. That's a commendable feat. So then we have rest segments. Here we cover MPV, premium MPV. It's Innova Hycross with 9,119 units. Innova Hycross, Creta and XUV 700. इन मॉडल्स का कोई तोड़ नहीं है मार्केट में. इवन अर्टिका का भी तोड़ नहीं है, हालांकि कैरेंस ने थोड़ा सा उसको मतलब उसमें अपनी एक जगह बनाई है, बट स्टिल इनका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में. Budget MPV, it's Ertiga with 16,604 units. It's number 2 dispatch car for month of July. Creta I think would be at number 3. That means Cairns Clavis at 7,602. ये भी वर्जन लॉन्च किया है इन्होंने, जो शायद थोड़े से यूनिट्स बढ़ जाएँ, 8 के अराउंड हो जाना चाहिए Cairns को. Let's see. Rumion with 576 units only. So then in this segment में scope तो है, but we have not heard Hyundai will not enter because there is already Kia Carens. Maybe they come in this segment. Tata Mahindra have a good chance in this segment. Maybe they come in near future. Then is compact sedan. Here Desire is number 1, 20,895 units. So Desire were dispatched for the last month of July, and it's the number 1 car for the month of July. Aura 4636, Amaze 2009 units, Tigor 965. Then comes sedan, again a niche segment now with Virtus and Slavia, always coming with number 1 and number 2 position. Virtus is number 1 with 1797 units, Slavia with 1168, Verna with 826 units, City 646, Ciaz 173. Recently I think Honda has reduced the price of the hybrid version. Let's see how much sales it can rake up. Then is the SUV, D-type SUV. Here you have XUV 700, Juggernaut. Same, no one has been able to dislodge this car right from the launch. So it's got 7054 units. And Harrier and Safari combined at 3458. With Harrier EV, this will be around 3,500 to 4,000 overall. Alcazar with 1419, Hector 579, Compass 129. XU700 is still number 1, short, big SUV. It has come of age indeed. I think there is still some opportunity for the other OEMs in this segment for sure. Let's see if these OEMs can have some model which can affect XUV 700. Otherwise none has affected its sales. Yes, so big SUVs में Toyota Fortuner 3,233 unit, then Skoda Kodiaq 106, MG Gloster 16, Tiguan is at number 3 with 28 units. Fortuner still like hotcakes in India, right? So others, lifestyle segment, Thar leads the way with 9,845 units. We don't have segregation between the 3-door and the Rocks currently, nor Mahindra provides it. Mahindra has managed to dispatch around 4,008 units of BEVs. They are new electric vehicles. BE6 with 1546, XEV 9e, obviously because of the comfort and the size, people are booking 9e more versus the BE6.
सो 2462 यूनिट्स फॉर XUV90 एंड XUV 400 के 290 यूनिट बेचे इन्होंने. सो कंबाइंड ऑलमोस्ट अराउंड 4300 EV सेल किया महिंद्रा ने, विच इज़ अ कमेंडेबल थिंग. Jimny sold around 362 units and Hilux for 370 units. Budget carry away Eco still holds the ground with 12,341 units. MG Windsor was the number one electric vehicle last month again with 4308 units. It's ever since it has been launched, it's been number one. Rugged SUV Bolero is selling, Mahindra Bolero selling 7513 units, again a substantial number, always it's like that. So this was an overview of the top 5 cars of the month of July. And in the dispatches, if in the dispatches he had number 1 was Maruti Suzuki, number 2 was Mahindra, number 3 was Hyundai Motors, 4 was Tata Motors, then Toyota Kirloskar Motors, 6th Kia, 7th was Honda, 8th was GSW MG, 9th and 10th would be I think Skoda. I think yes, 19 Skoda and the rest brands. So number 1, if we have seen Maruti Suzuki, domestic dispatches were around 1,37,778 units, just a 0.23% marginal rise. The sales have been flat for July again, and it is expected that only 1 to 2% of the market would rise, otherwise it would be flat. कुछ नए लॉन्चेस या कुछ लिमिटेड एडिशन से अगर कुछ ब्रांड्स बचा लें नहीं तो ये इस बारी जो सेल्स हैं वो प्लेट्यू ही होने वाले हैं. इट वुड बी द न्यू नॉर्मल फ्रॉम नाउ ऑन. जो कोविड वाला टाइम था वो निकल गया है, अब न्यू नॉर्मल वाला टाइम आने वाला है. सो इफ़ वी रिमूव द कोविड, पोस्ट कोविड टाइम, इफ़ यू रिमूव दैट टाइम, सो उसके बराबर ही रहेगा. बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है हमें कार्स की सेल्स में. सो एक्सपर्ट्स ऑफ मारुति वॉज अराउंड 31,745 यूनिट्स, rise of 32% on year basis. So basically मारुति अब अपने एक्सपोर्ट से अपनी ग्रोथ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू. डोमेस्टिक मार्केट तो उनकी ठीक ठाक ही चल रही है. सो ओवरऑल डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स मिला के उन्होंने 1,80,000 यूनिट डिस्पैच किए, तो 3% राइज है ईयर बेसिस पे. SUV सेगमेंट सेल्स टू अदर OEM विटनेस ड्रॉप वाइल हैचबैक ने थोड़ा सा इंक्रीज है, पर बहुत ज़्यादा ऐसा भी मार्जिनल इंक्रीज नहीं कि हम कुछ कह सकें कुछ सिग्निफिकेंट हो. सो नंबर 2 पे महिंद्रा एंड महिंद्रा 2020 से जो भी कर रहा है, दे स्ट्राइकिंग गोल्ड, लाइक हर बॉल पे छक्का ही मार रहे हैं ये लोग. तो महिंद्रा डिस्पैच अराउंड 49,871 व्हीकल्स विच इज़ अ 20% ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस, फिनोमिनल. 3X और X एंड BEV के पैक 2 उन्होंने अभी ऐड किए हैं, वो भी अब नंबर्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे. सो एंड यू हैव अ महिंद्रा इवेंट ऑन 15th of August. 14th को एक सरप्राइज़ ला रहे हैं, BE6 का कोई वर्जन आ रहा है आई थिंक. And they have announced 2 electric vehicles by January 2026, and you can expect XUV 700 facelift as well. So Mahindra is on roll. Yeah. So then we come to Hyundai Motors India, which is a number 3. They dispatched around 43,973 units, which is a decline of 10% on year basis. Hyundai has to be worried. While exports were 16,100 units and overall 60,000 units plus इन्होंने dispatch किए हैं, 7% rise है unit basis. I think Hyundai is also now focusing on exports so that they can manage their revenue better. Domestic market में इनकी भी sales ठीक ठाक ही हैं. I think Hyundai Venue से शायद कुछ addition होगा, कुछ पुशअप मिलेगा. रेस्ट आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी मॉडल लाइन अप. 2026 में ही है जो एक हाइब्रिड वर्जन जो ये लॉन्च करने की सोच रहे हैं. सो देन नंबर 4 इज़ टाटा मोटर्स इज़ dwindling down. Manual dispatch 40,175 units for the month of July 2025, a drop of 11% year basis. शेयर भी ड्रॉप हो रहा है, सेल्स भी ड्रॉप हो रही हैं. सो लेट्स सी. टाटा EVs contributed around 7,123 units among July 2025, rise of about 42% year on basis. I think they had the best record. They recorded the best ever EV sales. Significant milestone, zero emission journey में टाटा के लिए लाइफ टाइम वारंटी का इफेक्ट है. बट माइंड यू दे हैव 6 मॉडल्स नाउ. सो लेट्स सी इसमें कितना राइज करते हैं आगे आने वाले टाइम में. नंबर 5 पे है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स. टोयोटा अराउंड डिस्पैच अराउंड 32,575 यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, 3% ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है. किया मोटर्स ने 22,135 यूनिट डिस्पैच किए हैं विद राइज ऑफ 7.94 ऑन ईयर बेसिस. होंडा ने 7,524 यूनिट डिस्पैच किए हैं. डोमेस्टिक डिस्पैच 4,000 रहे हैं. एक्सपोर्ट्स 3,474.
बताने की ज़रूरत नहीं कि वो एलिवेट के ज़्यादा हैं। देन नंबर 8 पे है JSW MG मोटर्स, इन्होंने डिस्पैच किए हैं 6678 यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, 45% इन्होंने ग्रोथ है। JSW ने साइबरस्टर भी लॉन्च कर दी है इवेंचुअली, और M9 भी लॉन्च कर दी है। वेंचर इनकी बढ़िया कर रही है। देन आई थिंक स्कोडा का भी इतने के भी रहेगा, 3000 स्कोडा ने आई थिंक काइलैक सेल की हैं, और 3000 इनकी और गाड़ियाँ होंगी, 2200 और होंगी, तो वो नंबर 10 पे स्कोडा रहेगा। फिर 11 पे आई थिंक इट इज़ बिटवीन Nissan, Volkswagen and Renault. So this was an overview of the automotive sector in terms of the volume of dispatches. So और क्या ही है बात करने के लिए। 15 अभी आने वाले टाइम में 15 अगस्त को एक इवेंट है महिंद्रा का, विच इज़ अराउंड आई थिंक वो नए मॉडल्स दिखा रहे हैं जो 27 या 30 में लॉन्च होंगे, उनके बारे में है ज़्यादा। 14 को एक सरप्राइज़ लॉन्च है, BE6 लग रही है, कोई लिमिटेड एडिशन है या ब्लैक एडिशन या AWD, नो आइडिया अबाउट इट। सो वो आ जाएगा। फेयर लॉन्चेस में 3 सितंबर को मारुति की एक गाड़ी आने वाली है, विच इज़ फ्रॉम द मारुति सुजुकी अरीना, विच वुड बी अबव ब्रीजा एंड बिलो ग्रैंड विटारा। एंड एवरीवन, जो न्यूज़ वगैरह रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में, इट इज़ बीइंग शोन दैट के वो एक फीचर पैक मॉडल आने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट मारुति ब्रिंग्स ऑन टेबल फॉर दैट मॉडल। देन और लॉन्चेस में कुछ आने वाला है। हुंडई का आगे आनी है, अपनी वेन्यू आने वाली है। टाटा में टाटा सियारा EV एंड नाइस इज एक्सपेक्टेड बाय फेस्टिव सीजन। पंच EV का फेसलिफ्ट या पंच का फेसलिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पंच का EV में कह रहे हैं कि शायद हायर बैटरी पैक में आएगी, एंड होपफुली LTW अगर पंच में आ जाए, सो दिस कैन रियली ऐड वॉल्यूम्स टू दी टाटा नंबर्स। Then again I think BYD is readying Atto 2. Atto 2 एक उनकी SUV है which can do really very well in India if priced well. So we have to see that also. महिंद्रा के बारे में हमने बात कर ली, उनकी 2 EVs आएंगी 26 में, 700 का इलेक्ट्रिक और आइस का जो फेसलिफ्ट है, आइस का फेसलिफ्ट है वो आ जाएगा, उसमें EV वर्जन भी आएगा। 3XO का अभी तक कुछ नहीं पता कब आएगा उसका EV वर्जन। दो EV गाड़ियाँ तो महिंद्रा ने कंफर्म करी हैं हमारे को, मतलब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने अपनी जब रेवेन्यू का उनका इवेंट था उसमें उन्होंने शेयर कराई था कि 2 EVs आएंगी। 15 अगस्त को जो उनका इवेंट होगा जिसमें वो 4 विजन दिखा रहे हैं, विजन S, विजन S XT, विजन X एंड विजन T। सो वो 4 गाड़ियाँ वो क्या हैं वो डिटेल हमें मालूम पड़ेगी 15 अगस्त को ही। वो गाड़ियाँ 27 और 30 का टीज़र बता रहा है कि 27 से 30 में आने वाली हैं। बलेरो का भी बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि बलेरो भी आएगी, नहीं। सो महिंद्रा इज़ गॉट, मतलब हर चीज़ उनके घी में है इस वक्त, कोई उनको उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड और लॉन्चेस आई थिंक सिट्रोइन अपना 2.0 प्रोग्राम ला रहा है थोड़ी सी सेल्स इंप्रूव करने के लिए। इंडिया इज़ अ वेरी क्रूअल मार्केट, अगर आप नहीं पहले बारी में कुछ कर पाते तो सेकेंड टाइम में रिवाइवल होना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बारी शोरूम जो लोग जाना बंद कर दें उस ब्रांड का, फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे वो रेनॉल्ट कह लो, चाहे वो नीसान कह लो। एक बारी बंदा वो ब्रांड को नहीं याद रखता तो फिर वो नहीं याद रहता हमारे कस्टमर्स को, दे डोंट केयर, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी बना लो, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़। सो देन आ गया हमारा सबसे हॉट टॉपिक E10 E20 है फ्यूल का हो रहा है। देखो आई एम नॉट अफेक्टेड बाय इट बिकॉज आई हैव अ डीजल ब्रीजा विच इज़ लाइंग इन दिस कंडीशन। अब तो मैं इतनी चलाता नहीं, दैट्स कोना स्टैंडिंग ओवर देयर। सो मुझे E10 E20 का बस ज़्यादा मतलब हम इसमें कंट्रोवर्सी में हम नहीं पड़ेंगे बिकॉज कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, अब नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट। बट येस, जो सोशल मीडिया पे चैटर है, या अगर हम बात करें, मैं आज 3 वर्कशॉप्स विज़िट करके आया हूँ, अपने डीलरशिप्स देख कर आया हूँ, हुंडई का, मारुति का एंड किया का। सो देवर ऑल्सो टेलिंग दैट देयर आर इशूज़ कमिंग अप विद द कार्स। सो कितना ब्रॉड है, कितना ज़्यादा है, मुझे नहीं आइडिया, बट येस गवर्नमेंट शुड डू अ सिंपल सोल्यूशन। E10 भी दे दो यार, E20 भी दे दो, और 100% गैसोलीन भी दे दो, क्या दिक्कत है। जिसकी E10 कंप्लाइंट है वो E10 डलवा लेगा, जिसकी E20 कंप्लाइंट है वो E20 डलवा लेगा, जिसकी पूरी गैसोलीन वाली है, जिन्होंने पूरा टर्बो वाला मज़ा लेना है, वो वैसे इंजन हैं तो वो डलवा लेंगे। भाई कितनी की दिक्कत है, करना है तो सही तरीके से करो, नहीं तो ना करो। सो लेट्स सी, आई थिंक गवर्नमेंट
गवर्नमेंट शुड बी कंसिडरेट ऑन दैट। एंड वो बैन वाला भी आई थिंक इशू सेटल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक उसमें भी वर्डिक्ट दे दिया है कि देर कुड भी, मतलब उसमें इम्पोनेटिव एक्शन मना किया है, भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट वो कैसे रहेगा आगे, रजिस्ट्रेशन होंगी, क्या होगा, वी हैव नो आइडिया ऑन दैट। सो कुछ ज़्यादा ही इशूज़ चल रहे हैं अपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में, तो ठीक है, बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो चलता रहना चाहिए ना, राइट। सो होप लाइक दिस वीडियो। अपने वीडियो में भाई सीधी बात होती है, कोई इसमें कोई एनिमेशन वगैरह अपने पास नहीं है, ठीक है। सो इट्स जस्ट रैंडम टॉक वेयर वी कैन जस्ट शेयर द वेयर वी शेयर द डाटा of automotive sector for every month, and hopefully we will bring some more informative and valuable videos which are more engaging, because ये monotonous और boring हो जाता है, numbers वगैरह हर किसी को नहीं पसंद आती ऐसी चीज़ें। So rightfully, so please wear your seat belts and be a defensive driver, don't be in a road rage, and yes, एक annual pass आ गया है, 15 अगस्त आने वाली है अपनी। तो कल मैंने एंड्रॉयड ऐप में राज्य मार्ग यात्रा जो ऐप थी उस पर मैंने डाउनलोड किया, तो उसमें मुझे ऑप्शन दिखा रहा था एनुअल पास का, तो आई डाउनलोडेड इट एंड इट्स बीन सीमलेस। बट कुछ यूज़र्स आज बता रहे हैं कि उनकी एंड्रॉयड फ़ोन वाली जो ऐप है उसमें नहीं शो कर रहा, नो आइडिया वाई नहीं शो, क्यों नहीं शो कर रहा। मे बी वो फेज़ मैनर में होगा या थोड़ी देर के बाद शो करने लग जाएगा। सो अपन ने तो वो ले लिया भाई 3000 का पास, बिकॉज अपनी ड्राइविंग ज़्यादा है, NHI वाले जो हाईवेज़ हैं, तो इसमें NHI भी इंक्लूडेड है, NEs भी इंक्लूडेड हैं, नेशनल एक्सप्रेसवेज, जो कि NHI बना रहा है, जहाँ जहाँ NHI बना रहा है, जो स्टेट वगैरह उन पे तो नहीं होगा। सो येस, दिस वाज इट। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑटो सेक्टर वॉल्यूम्स, डिस्पैचेस, then about the new launches, then about this राज्य मार्ग यात्रा ऐप का जो एनुअल पास है। Hope you like this video, keep sharing, keep hooked to our Twitter, Facebook handles for the needful information on automobiles, especially for the electric vehicles. Yeah, thank you.